वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे का ऐलान किया। कहा कि अजीम इत्तेहादी F-35 तैयारे खरीद कर यकीनन खुश होगा। सऊदी अरब के लिए जदीद चिप्स की मंजूरी पर भी काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सऊदी सरमायाकारी में इजाफे के ऐलान का खैर मकदम किया। We're going to sell them F-35s. That's the end of the question, I guess. Is it part of the security agreement or no? No, we're going to have a deal. They're going to purchase F-35s. They're buying them from Lockheed, and it's a great plane. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish. We make the best planes, the best missiles. We make the best offensive missiles. We make the military equipment in the world. We have a extremely respected man in the Oval Office today, and a friend of mine for a long time, a very good friend of mine. And I'm very proud of the job he's done. What he's done is incredible in terms of human rights and everything else. And he's the Crown Prince, the future king. And I want to thank you because you've agreed to invest $600 billion into the United States. And because he's my friend, he might make it $1 trillion. But I'm going to have to work on them. We appreciate it very much. So Saudi is going to be investing at least $600 billion, and that means investments in plants, in companies, money on Wall Street. दूसरी जानिब सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे से पहले मसला फ़लस्तीन को दुरियास्ती हल यकीनी बनाने पर जोर। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका में सरमायाकारी का हुजम 600 अरब से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का ऐलान। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी की। गजा की तामीर नौ के लिए रकम फराहम करने का अज़्म भी किया। Abraham Accords in your discussion. I already brought him up. What did you say? I think I got a positive response. Would you like to respond? Yeah, so definitely we believe having a good relation with all Middle Eastern countries, it's a good thing, and we want to be part of the Abraham Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. This relation has been a relation for about 9 decades, and we've been working together for a long time. But today it's a very important time in our history because there is also a lot of things that we're working in the future. We believe in the future of the United States of America. We believe in what you're doing, Mr. President, really creating a lot of good things and good foundation to create more economic growth, more business in America. And it will also your work for the world peace. I believe, Mr. President, today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment. It's great news. इससे पहले सऊदी वलीअहद 7 बरस बाद व्हाइट हाउस में मेहमान बने। सदर ट्रंप ने खुद इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा। F-35 तैयारों ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश की। बैंड्स की धुनों ने समा बांध दिया। अमेरिका और सऊदी अरब में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान तारीखी दौरे पर व्हाइट हाउस पहुंचे। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके वज़रा पहले से ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से बाहर आए तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। दोनों जानिब से मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। सरगोशी भी की। बैंड्स ने धुनें बजाईं। अमेरिका के जदीद तरीन तैयारों ने वलीअहद को सलामी पेश की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को व्हाइट हाउस में नई बनाई गई वॉक ऑफ फेम भी दिखाई और उसके बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खारिज के खात्मे कमीशन केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। एक रोज में 39 खारजी दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों में खारिज के 2 सरगना भी शामिल हैं। 12 दहशतगर्द बनू और 11 बाजोड़ में कार्रवाई के दौरान मारे गए।
बाजोड़ में खारजी गिरोह का सरगना सज्जाद और अबू जर हलाक। कोलाची में सरगना आलम महसूद समेत 10 खारिज मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खारजी दहशतगर्द दत्ता खेल में मारे गए। बनू में बारूदी सुरंग नस्ब करते हुए दहशतगर्द खुद मारा गया। शिकस्त खाने वाला भारत सरहद पर हमला कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। ये भी बताया कि अब्राहम मुआहदे में शामिल होने का नहीं सोच रहे। पाकिस्तान को गजा से मुतालिक आलमी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहिए। को रखनी चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उसकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा। इंस्टेंटली होना चाहिए, बीच में कोई गैप तो कथित तौर पे नहीं आएगा इंशाल्लाह। आप कैसे दोनों सूरत हाल को देखते हैं, ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी और अफगानिस्तान वाली साइड पे खास तौर पर? इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो भी अफगानिस्तान जो है इस पर नजरअंदाज कर रहा है उसमें हिंदुस्तान का पूरा हाथ है। वो पाकिस्तान को एंगेज रखना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे एंगेज रहते हैं 100% जो है उसका फायदा जो है इंडिया को पहुंचता है। किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे। इब्राहिम अकॉर्ड का जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बिल्कुल कथित तौर पे कोई ये कंसिडर नहीं हो रहा। जो हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा बनना जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बनना चाहिए। फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ जो है हमारा एक जज्बाती ताल्लुक जो है, एक हमारा जो स्टेटेड स्टैंड है, इनको पार्टिसिपेट हमें करना चाहिए उस फोर्स के अंदर। भारत से जंग जीतकर पाकिस्तान का मुकाम दुनिया के सामने है। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा कि 6 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है, दोबारा वापस आएंगे। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। उसको मालूम है कि अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक सब उनको ये याद दिलवाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ कि आप जंग में भी हारे और इंशाल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर के अवाम का जो रिश्ता है, इसको कोई साजिश इंशाल्लाह ताला कमजोर नहीं कर सकती। हम बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। 6 महीने के बाद कश्मीर के अवाम के पास वापस जाएंगे, आपसे मैंडेट लेके फिर से ये हुकूमत संभालेंगे। अब आपको बताएं, कराची में भत्ताखोर फिर सरगर्म। न्यू टाउन एमए जिन्ना रोड पर भत्ता न देने पर कार शोरूम पर फायरिंग। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। 50 लाख या फिर मौत। कराची में भत्ताखोर एक बार फिर सरगर्म। दिन दिहाड़े इंतहाई मसरूफ सड़क पर कार शोरूम पर गोलियां बरसा दी। वाकया न्यू टाउन एमए जिन्ना रोड पर पेश आया। आधे घंटे पौने घंटे के बाद जो है कॉल आई है। बाद में एसएमएस किया उसने 50 लाख रुपए का, अहमद अली मक्सी कोई नाम बताया एसएमएस में, और 50 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। ये पिक्चर है, ये टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है की धमकी। ताजिर बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस तरह के वाकयात से कारोबारी हजरात की कमर तोड़ी जा रही है कि वो इस मुल्क में, इस शहर में ना कारोबार कर सके, ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके दे सके। सदर ऑल सिंध कार डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ताजिरों और उनके कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची।